all of you in the final session of our revision of map items for the upcoming prelims. Now we carry forward from South Asia to Indian map, conventional and some of the important locations that you can take up with the land frontiers of the country. I'll be focusing on them. So quickly getting onto the screen share. So in the last session, we have taken the understanding of South Asia islands. Now we are focusing on the mainland. So to continue with the map of India, when I talk about landmass of India, I identify it to be incorporating its territorial extension as 30 degrees graticule, 30 degrees north-south, 30 degrees east-west. That is where you can take up the demarcation of 8 degrees 4 minutes north to 37 degrees 6 minutes north. If I take up this alignment of Indian north-south extension, I outline some 3,214 kilometers as its north-south extension and compared to it 68 degrees 7 minutes to 97 degrees 25 minutes. If I take this east-west extension, I identify it to be 2,933 kilometers, and this is basically to do with the fact that meridians are not equidistant and their distance goes on decreasing with increasing distance from equator. तो 30 डिग्रीज लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के एक्सटेंशन होने के बावजूद भी आपको बहुत आराम से दिखाई दे रहा है कि we are having the distance difference that has been identified. Added to it, if I have to take reference of the important locational characteristics of landmass of India, तो हम बहुत आराम से क्या कह सकते हैं कि Indian landmass incorporate the traversing of, I change the color, it's Tropic of Cancer, 23.5 degrees north, passes almost from center of India, and as it passes from almost center of India, it marks its traversing via state of Gujarat, very evident, Rajasthan, not that evident, हम इसको मिस कर देते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, West Bengal, of course via Bangladesh, don't miss to see Tripura, and then Mizoram. Matlab, when I take reference of Tropic of Cancer traversing via India, I take up these administrative units into consideration, count them up, it is 8. And if I have to take the prime meridian of our country, prime meridian of our country is 5 hours 30 minutes ahead of UTC. It is 82 degrees 30 minutes east, and if I take up that 82 degrees 30 minutes east, by default it will be marking its traversing with the administrative units as Uttar Pradesh, as Chhattisgarh, as Odisha, बहुत ध्यान से देखते जाएंगे, and as आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से कुछ लेना देना नहीं है. So automatically आपके पास आ गया एक इंफॉर्मेशन कि इंडियन प्राइम मेरिडियन जो है वो इंडिया के 4 स्टेट से ट्रेवर्स आउट करता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 के साथ ट्रेवर्स आउट करता है. छत्तीसगढ़ इज द ओनली स्टेट ऑफ आवर कंट्री दैट रिलेट्स टू बोथ ऑफ देम. ये वाला डिमार्केशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट लैंड. अच्छा, इसके बाद जब आप बात करते हो ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द कंट्री, तो 6,100 kilometers is mainland shoreline. 7,516 kilometer हो जाता है जब आप islands को भी consider कर लेते हैं, and some 15,200 kilometers is identified to be the land frontier. Land frontier को 15,200 kilometer तब कहते हैं जब हम Aksai Chin as a Chinese possession and Pakistan occupied Kashmir ko recognition nahi de rahe. So you take up the locational characteristics in terms of this. And after dealing with this, when I take you to this map, हम इतने fast forward mode पर रहते हैं कि एक बहुत basic set of question हमारे assessment में गलत हो जाता है. उस गलती को हमें retain out करना है. तो अगर आप shoreline के बारे में बात करना शुरू करें तो बहुत ध्यान से देखते हुए जाएंगे
starting from West Bengal to Odisha to Andhra Pradesh, we very clearly say we are at the shoreline of Bay of Bengal. बिल्कुल सही. यूनियन टेरिटरी को एड ऑन कर लो तो पुदुचेरी, पुदुचेरी के 3 कंस्टिट्यूएंट बे ऑफ बंगाल के साथ एसोसिएटेड है, यनम, पुदुचेरी, कराईकाल. माहे जो जाएगा वो अरेबियन सी के साथ जाएगा. अरेबियन सी के साथ जाएगा कि नहीं वो भी थोड़ी देर में बता रहे. जैसे ही आप ये बे ऑफ बंगाल का डिमार्केशन लेकर इस पार्ट को जूम आउट करते हो, आपको कल के सेशन में भी बहुत क्लियरली बताया था, तमिलनाडु विल क्वालिफाई टू बी द स्टेट ऑफ आवर कंट्री that will have its shoreline with Bay of Bengal, Pak Bay, Gulf of Mannar and Indian Ocean. I think it makes sense. मतलब अगर आप तमिलनाडु के शोरलाइन के बारे में बात करोगे तो आपको 4 मार्जिनल वाटर बॉडीज, 3 मार्जिनल वाटर बॉडीज और एक ओशन को लेना पड़ेगा. एंड नोटिस केयरफुली कि आप ये पूरा शोरलाइन जज आउट कर रहे हो तो यू आर टचिंग इंडियन ओशन ऑल्सो. बिल्कुल उसी तरीके से जब आप डिमार्केट आउट करेंगे, सो दिस इज माई गल्फ ऑफ मन्नार, यू आर अवेयर ऑफ इट, एंड बे ऑफ बंगाल का डिमार्केशन ले लिया, बाकी सारे बे ऑफ बंगाल, इट इज डन. अच्छा, अब हम पर्पसफुली कलर चेंज करते हैं. स्टार्टिंग ऑन फ्रॉम केरला, माही ऑफ पुदुचेरी, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन दीव कंबाइंड टुगेदर नाउ, दिस इज गुजरात. अच्छा, एक बड़ा जनरल सा डिमार्केशन लेकर खत्म करा तो यस, वी ऑल हैव शोरलाइन विद अरेबियन सी. वी हैव शोरलाइन विद अरेबियन सी. एंड व्हेन आई टेक अप द रेफरेंस ऑफ शोरलाइन विद अरेबियन सी, व्हाट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन इज, क्या लक्षद्वीप का शोरलाइन एक्चुअली अरेबियन सी के साथ एसोसिएटेड है? क्या केरला का शोरलाइन लक्षद्वीप के साथ ही अरेबियन सी से एसोसिएटेड है? इसमें आंसर आएगा नहीं, यहां पर लक्षद्वीप सी है. सो यू हैव टू बी स्लाइटली कॉशियस विद दीज डिमार्केशन. क्वेश्चन इस पर बेस्ड आराम से आ सकता है. तो केरला एंड लक्षद्वीप इनकॉर्पोरेट देयर बाउंड्री शोरलाइन विद लक्षद्वीप सी ऑल्सो. उसके बाद आप जाओ कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, आप अरेबियन सी में है. बट जैसे ही आप गुजरात में आ गए, I have to make my marker more thinner. ये है आपका गल्फ ऑफ खंबात, ये है आपका गल्फ ऑफ कच्छ. तो you need to understand that गुजरात, and of course this is Arabian Sea. So गुजरात का जो शोरलाइन है वो 3 मार्जिनल वाटर बॉडीज के साथ चला जाएगा, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात एंड अरेबियन सी. तो जब आप शोरलाइन के बारे में बात करें तो थोड़ा सा इस पॉइंट का क्वेश्चन लेकर चलेंगे. That with Tamil Nadu it is 4. It Kerala, Lakshadweep, it is 2 each, and when it is Gujarat, it is 3. बाकी सबके साथ आप 1 each लेकर चलो, there is no problem. अच्छा, अंडमान निकोबार के साथ भी बिल्कुल यही वाला लॉजिक अप्लाई करना. इधर है अंडमान सी, इधर है बे ऑफ बंगाल एंड यहाँ है इंडियन ओशन. तो आपको यहाँ पर भी 3 वाटर बॉडीज के साथ एसोसिएशन देना है when it comes on to the water frontier, when it comes to the land frontier. When it comes on to the demarcation of the land frontier, what you have to understand carefully, be comfortable with it. और ये बड़ा evident सा point है, but हम normally इसको miss out कर जाते हैं when we encounter the question. So गुजरात ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए. I'm going very rough with my boundary. ध्यान से देखते जाओ, हरियाणा का कुछ लेना देना नहीं है. पंजाब लीजिए, zoom up कर दिया, बहुत ध्यान से देखेंगे. जम्मू एंड कश्मीर. So पाकिस्तान का इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया के कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के साथ एसोसिएट हुआ, ये आपको दिखाई दे गया. गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है रिवीजन में. ये क्लैरिटी नहीं आएगी तो क्वेश्चन हाथ से निकलेंगे, तो जरूरी है ये. अच्छा, जब हम डिमार्केशन कंटिन्यू करें और लद्दाख को हाईलाइट करते हुए आगे बढ़े, तो विच आर दी स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री दैट शेयर्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद चाइना. तो अब यहां ध्यान से देखते जाओ, हम इंटरनल बाउंड्रीज भी जानबूझकर इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं. ठीक है, तो मेरा लद्दाख आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, पंजाब से कुछ लेना देना नहीं, उत्तराखंड आ गया. उत्तराखंड के बाद चाइना की इंटरनेशनल बाउंड्री जो है
वो नेपाल के साथ है। तो लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर जो आपको आराम से दिखाई दे एंड हाईलाइटिंग इट। तो ये बना आपका नेपालीज बॉर्डर विद चाइना, जिससे हमारा कंसर्न नहीं है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े ब्लैक कलर के साथ, दिस कम्स सिक्किम एंड देन कम्स अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश तो ऑटोमेटिकली न्यूज में आ गया because of China renaming the areas, with India has definitely completely strongly criticized that. So tick out करते हैं, which are the administrative units of our country that shares international boundary with China. So it's Union Territory of Ladakh, it's Himachal Pradesh, it's Uttarakhand, it's Sikkim, it's Arunachal Pradesh. डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्री लाइन आराम से लोगे तो बहुत जस्टिफाइड वे में समझ में आएगा। जैसे ही आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आ जाएं, आपको नोटिस ये करना है कि अरुणाचल प्रदेश, कलर अब जानबूझकर चेंज कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, रुक जाओ, का शोर लाइन गया, इंटरनेशनल बाउंड्री गया म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के साथ हमारे पास हो गए अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3 और मिजोरम 4। 4 स्टेट्स के साथ आप म्यांमार की इंटरनेशनल बाउंड्री को एसोसिएट कर रहे हैं। When you take China, you are counting Arunachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand, Himachal Pradesh, तो 4 स्टेट्स हो गए और एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट लद्दाख है। तो 5 या 4+1 करके ऐसे करके रिवाइज करो, इस तरह से डिमार्केट आउट करेंगे। नाउ कम्स इन द लेंथीएस्ट लैंड फ्रंटियर दैट इंडिया इज हैविंग विद द नेबरिंग कंट्री, एंड नेम ऑफ द कंट्री इज बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इंडिया का लैंड फ्रंटियर मोर देन 4000 किलोमीटर्स है। और जैसे ही आप बांग्लादेश का इंटरनेशनल बाउंड्री को हाईलाइट कर देते हो, आपको बड़े आराम से दिखाई दे रहा है that the land frontiers that Bangladesh shares with our administrative units includes West Bengal, so that is number 1. ये सारा वेस्ट बंगाल है, तो बहुत ध्यान से नोटिस कर लेना, सिक्किम का कुछ लेना देना नहीं है बांग्लादेश से। इट इंक्लूड्स मेघालय, दिख गया, इट इंक्लूड्स असम, ये असम की बाउंड्री है इधर, it includes Tripura and it includes Mizoram. So Mizoram 1, Tripura 2, Assam 3, Meghalaya 4 and West Bengal 5. और बांग्लादेश के साथ हमारा lengthiest land frontier। आप जब इस तरीके से रिवीजन लेते हो तो आपका लोकेशनल क्लैरिटी बहुत आराम से इवॉल्व आउट होता है। When we try to take up the other administrative units of our country, जिनका इंटरनेशनल बाउंड्री से रिलेशन नहीं है, वहां पर आप ऑल स्टेट्स काउंट कर सकते हो, बट उससे पहले ये वाले ब्लॉक को भी कवर आउट कर दें। अगर मुझे भूटान के साथ इंडिया का लैंड फ्रंटियर डिमार्केट करना है, अगर मुझे भूटान के साथ इंडिया का लैंड फ्रंटियर डिमार्केट करना है, तो आई कैन सी दैट इट इज सिक्किम, इट इज वेस्ट बंगाल, it is Assam and it is Arunachal Pradesh. So it is Sikkim, West Bengal, Assam and Arunachal Pradesh. भूटान के साथ आप 4 ले जाएंगे। और जब आप नेपाल के साथ आओगे, आई चेंज कलर टू रेड नाउ, तो सिक्किम भी लेंगे, वेस्ट बंगाल भी लेंगे, बिहार भी लेंगे, उत्तर प्रदेश भी लेंगे एंड उत्तराखंड भी लेंगे। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, West Bengal, Sikkim. India shares a land frontier with Myanmar, China, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Pakistan. और जब आप इनके बारे में बात करते हो, अफगानिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लिखा हुआ है। अफगानिस्तान के साथ जब आप बात कर रहे हो तो आप इस एरिया में हैं, और इस एरिया का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब बहुत ज्यादा जज करो ना, हमें तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को जजमेंट देनी ही नहीं है, तो फिर लद्दाख, काम खत्म। सो आप अफगानिस्तान को उसी कंटेक्स्ट में रखो। बाकी जो आपकी 6 कंट्रीज हो गई, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, उसके साथ आप इस डिमार्केशन में रखेंगे। और जब आप वाटर फ्रंट की बात करते हो तो प्लीज बी कॉशियस विद एटलीस्ट तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड गुजरात। बाकी सबके साथ तो वी आर वेरी कंफर्टेबल। जो चीज हम सोचते हैं बिल्कुल उसी हिसाब से डिमार्केटेड डोमेन है, सो दैट इज नॉट क्रिएटिंग मच ट्रबल एट ऑल। तो ये हुई बात लोकेशन की। अच्छा, जब लोकेशन की बात कर रहे हैं तो अपने दिमाग में ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियरली डाल लेना
that when it comes on to the states of our country, I'm not going very clearly with their shape, but फिर भी जल्दी जल्दी से demarcate out कर रहे हैं. झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश. ध्यान से देख लो भाई. झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश. ना तो कोई लैंड फ्रंटियर, ना तो कोई वाटर फ्रंटियर, एकदम इंटरनली लोकेटेड स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री. क्योंकि राजस्थान के साथ कोई शोरलाइन नहीं है, बट लैंड फ्रंटियर आता है. इसी कैटेगरी में ऑफ कोर्स वी शुड नॉट मिस हरियाणा इज टू बी इंक्लूडेड. चलो भाई, लिस्ट पूरी हो गई. हरियाणा को नहीं छोड़ सकते. हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड. हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आर with no land frontiers and with no maritime boundary. बाकी सबके साथ आपका maritime boundary या land frontier associated है. I think this makes sense. When you try to revise the locations like this, it becomes excellently and easy for you to handle. When I revise map of India, I should take into consideration, now comes this map. I think this will be easier for me to handle. इसी से reference पे लेते हैं, तो इसको जूम अप कर लेते हैं. इंडियन मैप स्टडी विल नेवर बी कंप्लीट विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स. तो हमने ये वाला मैप रिलीफ फीचर्स के लिए लिया है. आपको कल के सेशन में भी बहुत क्लियरली समझा दिया था that when I talk about the principal physiographic units of India, तो ये वाला पूरा बेल्ट तो आपका जाता है माउंटेन्स के साथ. Equally goes this and all this block, ऐसे करके डिमार्केट करेंगे पर्पसफुली, is considered to be Indian plateau. This is northern. और इन्हीं के डिमार्केशन से जो चीज आपके पास बच गई, इंडो-गेंजेटिक प्लेन, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ईस्ट कोस्ट प्लेन, वेस्ट कोस्ट प्लेन makes the physiographic unit number 3. So northern mountain wall is basically incorporating हिमालयाज. अब इसमें भी आप जैसे ही पॉलिटिकल मैप को जज आउट करोगे ना, तो हिमालयाज कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के साथ एसोसिएट हो गई. इट विल एसोसिएट विद लद्दाख, इट विल एसोसिएट विद जम्मू कश्मीर, इट विल एसोसिएट विद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश लॉजिकली. और पूर्वांचल आप किसके साथ एसोसिएट करते हैं? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा. क्योंकि मेघालय में तो गारो खानसी जयंतियां है ना. That is considered to be the part of plateau, Indian plateau का हिस्सा है. ग्रेट इंडियन डेजर्ट डेजर्ट है, बट फिजियोग्राफिकली तो प्लेन है. अरावलीज आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, इसको इंडियन प्लाट्यू का हिस्सा बोलते हैं. तो जैसे ही आपने एक फिजियोग्राफिक डिमार्केशन लिया और उसको एसोसिएट कर दिया पॉलिटिकल मैप से, then you are in the position of demarcating out the features easily and more defined way. तो सबसे पहली चीज चाहिए locational clarity. Once that is done, then rest of the things automatically comes up in the continuity. और यही चीज आपको जज आउट करनी है. What I want to insist, however, is not onto the physiographic feature. Relief study पर तो हमारा फोकस है नहीं. तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट हुआ, और इस रेफरेंस पॉइंट पर अब जरा बहुत ध्यान से देखते जाओ और समझते जाओ. I have given you this lead already. तो I start with southern rivers, क्योंकि मुझे northern river के साथ ना आपको थोड़ा सा important physiographic details बताना है with the political dimension. तो उल्टा चलते हैं, ठीक है. तो जैसे ही हम ये southern part of India में आते हैं, मुझे सबसे बड़ी river system जो दिखाई देती है कंट्री की, वो है कावेरी. कावेरी rising from western Ghats drains into Tamil Nadu and develops this spot जिसको आप पॉइंट कैलीमीर बोलते हैं, जो ये जाफना पेनिनसुला के साथ पाक स्ट्रेट की बाउंड्री क्रिएट करता है. ठीक है, तो अभी हम बना रहे हैं रिवर कावेरी. राइटिंग द नेम हेयर. कावेरी के दोनों स्पेलिंग्स वेरी वैल्यूएबल हैं, दोनों लिख लीजिए. कावेरी वेस्टर्न घाट से राइज कर कहां पर अपना माउथ बना रही है, बहुत ध्यान से देखना. इट इज मेकिंग इट्स माउथ इन पाक बे के नॉर्थ में, बे ऑफ बंगाल. इंटर स्टेट फ्लो है. इसका फ्लो जो है वो कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु है.
जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो केरला को रोप इन करती हैं, अदरवाइज आपको कराईकाल पुदुचेरी दिखाई दे रहा है. When I talk about the other important streams in Tamil Nadu, I have got, ये रिवर यहाँ बनी हुई नहीं है बट हमें बनाना बहुत जरूरी है, इसके बिना काम बनेगा नहीं. मदुरई इज लोकेटेड ऑन इट्स बैंक. इस रिवर का नाम है रिवर वाईगाई. वाईगाई का रेफरेंस कल के सेशन में भी आपको दिया था. वाईगाई रिवर के साथ आप एडम्स ब्रिज को एसोसिएट करते हो. तमिलनाडु की रिवर में आप पोन्नियार रिवर को छोड़ भी सकते हो, पलार को मत छोड़ना, क्योंकि पलार रिवर इज रिलेटेड टू नेशनल वाटरवे 4, द लेंथीएस्ट वाटरवे ऑफ आवर कंट्री, जो काकीनाडा पुदुचेरी लिंक कनाल जिसको कहा जाता है. तो वो कौन कौन से रिवर्स को कनेक्ट करते हुए थोड़ी देर बाद बताते हैं. जैसे हम तमिलनाडु की रिवर्स से नॉर्थ की तरफ बढ़े, हमें मिलती हैं रिवर्स जो कि इनकॉर्पोरेट करती हैं कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. तो ये मेरी रिवर है, इसको हम बिग रिवर में इंक्लूड करते हैं. इसका नाम है पेनेर या पेनेरू रिवर. पेनेर या पेनेरू रिवर इज काउंटेड अमंग द 13 बिग रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड. हम अभी नंबर काउंट कर देंगे डिमार्केशन के बाद. इंटर स्टेट बाउंड्री एक बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है, अगर आप उसका सपोर्ट ले लो तो मेरे ख्याल से आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा. आई एम गोइंग वेरी रफ, आई एम नॉट गोइंग एब्सोल्यूट विद माई इंटर स्टेट बाउंड्री, बट इसको इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इंटर स्टेट फ्लो ऑफ द रिवर्स को जज आउट कर लें. I think that is something very important, especially when you are preparing for questions that have got multiple choice nature, है ना. वो थोड़ा सा सिग्निफिकेंट डिमार्केशन दे देता है. चलो, बहुत सारे इंटर स्टेट बाउंड्री डिमार्केट आउट कर दिए, अभी थोड़ी देर में बाकी और कर देंगे. ट्रैवलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ हमने जानबूझकर ब्लू कलर लिया है. अच्छा, थोड़ा सा जूम अप करा. I can see that river Peneru is rising from Karnataka and is draining in Andhra Pradesh. तो ये बाउंड्री लाइन मुझे आराम से दिखाई देती है. When I take reference of river Krishna, red river again, red color again, river Krishna जो है एक पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री डेवलप करती है, and this is the Krishna river. उसके बाद ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं. भीमा रिवर को ले लो या तुंगभद्रा रिवर को ले लो. Krishna river from Maharashtra via Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh interstate boundary and mouth in Bay of Bengal. Bhima Maharashtra, Karnataka and Tungabandra कर्नाटका से तेलंगाना. ऐसे करके आप डिमार्केशन लेंगे तो आपको नाम याद रखना आसान होगा. दिस इज कृष्णा रिवर. I change the color to black. This is Godavari, the biggest river system of our country when it comes on to peninsular India. Second biggest अगर पूरे country को रेफर करें. When I talk about this biggest river system, I need to take it up with reference to some of the important tributaries. ज्यादा important tributaries यहाँ पर मेंशन नहीं है. इरावदी दिखाई दे रही है और वेन गंगा दिखाई दे रही है जो मुझे इंटर स्टेट एक्सटेंशन दे रही है. तो गोदावरी का रेफरेंस तो महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड देन आंध्र प्रदेश से है, बट वेन गंगा टेक्स मी टू मध्य प्रदेश एंड इरावदी टेक्स मी टू ओडिशा, छत्तीसगढ़. तो ये डिमार्केशन थोड़ा सा आसान हो जाता है इन टेकिंग अप रिवर गोदावरी. अच्छा, गोदावरी को इस मैप में देख रहे हो तो बहुत ध्यान से नोटिस करना. गोदावरी रिलेट्स टू यनम ऑफ पुदुचेरी एज वेल. काउंट कर रहे हैं. कावेरी एज 1, पेनेरू एज 2, Krishna as 3, Godavari as 4 is counted among the principal streams of our country. तो अभी तो 4 ही हुई. और कौन सी रिवर? रिवर नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज महानदी. महानदी राइज करती है छत्तीसगढ़ से और ड्रेन करती है ओडिशा में विद इट्स डेल्टा है. महानदी इज ऑल्सो इंटर स्टेट स्ट्रीम. इसको आप काउंट करो. नंबर 5. नंबर 6 आई ब्रह्मणी. ब्रह्मणी रिवर को आप झारखंड से टेक करके डिमार्केट इट्स बाउंड्री विद ओडिशा. इसका डेल्टा जो है वो ओडिशा में है. तो ब्रह्मणी रिवर को भी आप काउंट करते हैं अमंग द बिग रिवर्स ऑफ इंडिया. तो 6 रिवर्स तो यहां पर हो गई. और इसके अलावा जो 4 और रिवर्स पेनिनसुला में डिमार्केट हैं वो ये हैं: तापी, नर्मदा, माही, साबरमती.
ध्यान से देखते जाओ। तापी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। नर्मदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। माही मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। साबरमती राजस्थान, गुजरात। मतलब इन चारों को अगर हम ऐड कर दे, अपनी नंबर सीक्वेंस को कंटिन्यू रखें, तो छठा वहां ले लिया, 7th इज तापी, 8th इज नर्मदा, 9th इज माही एंड 10th इज साबरमती। 10 आउट ऑफ 13 बिग रिवर्स हमारे राडार पर आ गए। और आप खुद से नोटिस करिए, इट डजंट बिकम डिफिकल्ट टास्क एट ऑल, कि जैसे ही आप रिवर सिस्टम्स को इस तरह से डिमार्केट करेंगे, उनका इंटर स्टेट फ्लो आपके सामने आ जाता है। और यही इंटर स्टेट फ्लो जो है वो जस्टिफाई करता है एक्सटेंशन परव्यू और रिवर वाटर प्लानिंग एंड एक्सेट्रा। तो 10 बिग रिवर्स ऑफ आवर कंट्री इज इन पेनिनसुला। साबरमती फ्रॉम राजस्थान टू गुजरात, माही फ्रॉम मध्य प्रदेश वाया राजस्थान टू गुजरात। तो 3 स्टेट्स में ट्रेवर्स करती है। एंड माही के साथ हम एक एडिशनल फीचर भी ऐड करते हैं, दैट दिस इज द ओनली रिवर दैट इनकॉर्पोरेट क्रॉसिंग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। बिग रिवर सिस्टम की लिस्ट कंटिन्यू रहेगी अभी थोड़ी देर में, ध्यान से पहले देखो। ये मेरा लार्जेस्ट इनलैंड रिवर है, लूनी बोलते हैं इसको। इट इज नॉट काउंटेड अमंग द टॉप 10। लूनी रिवर का भी इंटर स्टेट फ्लो है, राजस्थान से राइज करती है, इसकी माउथ जो है वो रन ऑफ कच्छ में है, जो गुजरात। सुबर्ण रेखा is not counted among the big rivers of the country, but सुबर्ण रेखा is also a significant stream। ध्यान से देखेंगे, झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल तीनों से लेना देना है। आपको कल के सेशन में इरावदी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी छिंदविन के बारे में बताया था। छिंदविन की ही ट्रिब्यूटरी है मणिपुर रिवर। छिंदविन की ट्रिब्यूटरी है कलादान रिवर। कलादान रिवर मिजोरम से और मणिपुर रिवर मणिपुर से ट्रेवर्स करती है। नो प्राइस फॉर गेसिंग। ये सारी छोटी स्ट्रीम्स हैं, बट इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, बहुत ध्यान से देखो, हमें एक इंपॉर्टेंट मैप पर आपको इसके बाद ले जाना है। दिस इज माई रिवर बराक। इट राइजेस फ्रॉम मीजो हिल्स, ट्रेवर्सेस इन मिजोरम टू असम एंड एंटर्स बांग्ला। इंपॉर्टेंट लोकेशन पर लेकर जा रहे हैं। ये है मेरी रिवर, इसका नाम है लूहित। ये है मेरी सांगपो रिवर, जिसको हम बोलते हैं दिहांग। और इधर आती है मेरी दिबांग। ये तीनों कन्फ्लुएंस करके बन गई ब्रह्मपुत्रा, जो एंटर कर गई बांग्लादेश में, जहां इसका नाम है जमुना। तो नोटिस करते जाओ, क्योंकि हमें इनका एक इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग को जज आउट करना है। आई एम लेबलिंग देम। अभी हम इनका नाम लिख दे रहे हैं और आपको आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखो, दिस इज तिस्ता, दिस इज मानस, दिस इज ए जमुना। जमुना एक्चुअली क्या है? जमुना इज नेम ऑफ ब्रह्मपुत्रा इन बांग्लादेश। तिस्ता ट्रिब्यूटरी हुई जमुना की, बराक भी ट्रिब्यूटरी है जमुना की। जमुना कन्फ्लुएंस कर जाती है पद्मा से। पद्मा इज नेम ऑफ रिवर गंगा इन बांग्लादेश। अभी इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। जैसे आप तिस्ता, मानस, सुबनसिरी रिवर्स के बारे में जज आउट कर लेते हो, इसके बाद आपके लिए आसान होता है ये वाला जजमेंट लेना। सो दिस इज माय सांगपो रिवर, यारलोंग जैंगबो भी बोलते हैं। इसका नेटवर्क आपको बता दिया। अब जरा ये वाला मैप देखो ध्यान से। Is it only Bogibeel that you have to take up into consideration for Indian ambitious act east with the northeast holding on the potentiality? नहीं, आपको बहुत आराम से जस्टिफाई करना है लोकेशनल क्लैरिटी को। ध्यान से देख लो, येलो कलर से हमने हाईलाइट कर रखा है बाउंड्री ऑफ असम, और इसके साथ आप नोटिस करते जाइए दी फीचर्स विच आर रिलेटेड। ये आपका रिवर लूहित है, ये आपका रिवर दिबांग है, ये आपका रिवर दिहांग है। नमचा बरवा पर ग्रेट बेंड डिमार्केटेड है। नोटिस एंड नोटिस केयरफुली। नंबर 5 लूहित दिगारू ब्रिज, ये रिवर लूहित पर है। नंबर 4 धोला सादिया ब्रिज, राइट हेयर, इट्स ऑल्सो ऑन रिवर लूहित। यू कैन सी आई हैव मार्क्ड इट अप विद रेड कलर। बोगीबील ऑन दिब्रूगढ़। दिब्रूगढ़ का मतलब हो गया बोगीबील किस रिवर पर डिमार्केट हो गई? इट इज ऑन रिवर ब्रह्मपुत्रा। तो ऐसा कर लेते हैं ना, रिवर ब्रह्मपुत्रा को यहां से एक थिक ब्लैक लाइन के साथ आउटलाइन कर देते हैं। ये मेरा रिवर ब्रह्मपुत्रा है। तो जब आप रिवर ब्रह्मपुत्रा के ब्रिजेस की बात कर रहे हो, तो आ गया एक बोगीबील। उसके बाद आप और डिमार्केट कर लो ब्रिजेस दैट आर बीन आइडेंटिफाइड विद दिस।
कोलिया बोमरा एंड सराय घाट ब्रिज। आई होप यू आर नोटिसिंग इट। तेजपुर के पास एंड राइट है। असम में जो मेजर ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट आउट हुए हैं उसका आप डिमार्केशन लेना शुरू कर दो धोला सादिया ब्रिज से। उससे पहले जो आपने ब्रिज मार्क करा है लोहित दिगारू ब्रिज, दैट विल बी इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ ही तो आप सुबनसिरी रिवर या दिबांग या दिहांग का रेफरेंस ले रहे हो। सो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको नोटिस आउट करना चाहिए व्हेन यू आर लर्निंग अबाउट द ब्रिजेस। और दूसरा इंपॉर्टेंट डोमेन ये है, जब आप आज की डेट में पूरा बांग्लादेश इंडिया रिवर वाटर मैनेजमेंट एंड टेमिंग की बात करते हो तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन है, मानस संकोश तिस्ता गंगा लिंक प्रोजेक्ट। अब ये मानस संकोश तिस्ता गंगा लिंक प्रोजेक्ट ये मेरा प्रोजेक्ट का रेड लाइन है जो हमने बना दिया। आप सबको पता है रिवर तिस्ता, अभी थोड़ी देर पहले बताया, दिस इज रिवर तिस्ता। आपको बता दिया मानस। संकोश एक रिवर है जो स्मॉलर रिवर है, वो मानस के वेस्ट साइड में पड़ती है, ये रही मेरी मानस रिवर। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड नोटिसिंग, दिस इज माई मानस, मतलब आप सुबनसिरी तक नहीं जा रहे हो। दिस इज माई संकोश रिवर जो मर्ज कर रही है यहाँ पर, ये तिस्ता रिवर है। और ये रिवर जो है आपको दिखाई दे रही है दार्जिलिंग से राइज करती है, बहुत छोटी सी रिवर है क्योंकि हमने यहाँ पर जूम अप कर लिया इसलिए हमें दिखाई दे रही है। दिस इज महानंदा रिवर। महानंदा रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है वेस्ट बंगाल में। तो वी हैव डेवलप्ड अ लिंक कनाल दैट इज कनेक्टिंग महानंदा फ्रॉम विद संकोश तिस्ता, and that is very clearly enhancing on the navigable links that are being identified in northeast. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू टेक इनटू कंसिडरेशन। खाली सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि रीनेमिंग ऑफ प्लेसेस बाय चाइना इज नॉट द कंसर्न ऑफ आवर्स। न्यूज़पेपर में आया इसलिए अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री लाइंस को आपको जस्टिफाई डेफिनेटली करना चाहिए। इफ आई टेक रेफरेंस ऑफ रिवर सिस्टम ऑफ इंडस, जिसमें मुझे ज्यादा कुछ आपको बताना नहीं है, रिवर इंडस राइजेस फ्रॉम मानसरोवर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख से ड्रेन करते हुए ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से जब हम डिमार्केशन लेते हैं तो हमें समझना क्या है, ये चीज समझनी है, ध्यान से देख लो। झेलम, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना प्रीलिम्स में कि आपको कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं जो डायरेक्टली मर्ज अप करती है। इंडस, ये रहा झेलम, चेनाब, रबी, बियास, सतलज। बहुत ध्यान से नोटिस करेंगे that we have got the direct confluence only of the confluence flow of Jhelum and Satluj. इंडस रिवर से ये पांचों ट्रिब्यूटरी एक दूसरे से मिलकर कन्वर्ज करती हैं, and that is the reason when I talk about the Indus River Water Treaty, it is Chenab, Bias, Satluj that we take up, Indus, Jhelum, Chenab that we take up with Pakistan, and Rabi, Bias, Satluj we take up with India. मतलब they are utilizing this water and they will be utilizing that water. ये डिमार्केशन जरूरी है, नोटिस ध्यान से कर लीजिए कि that when we take up the reference of these flowing river which is international in its flow, it is only with Indus and Satluj that I include China, Tibet as well. इनका सोर्स तिब्बत से आ रहा है, इंडस एंड सतलज, बाकी सब हिमालय से ओरिजिन होने वाली रिवर। एंड फाइनली अगर मुझे रिवर गंगा का नेटवर्क को ट्रेस करना है तो ध्यान से देखो, अभी एनलार्जमेंट बता रहे हैं। गंगा इज द रिवर दैट इज द बिगेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। तो गंगा और यमुना को रेड कलर से मार्कअप करके मुझे आपको कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डोमेन बताना है। दिस इज माई गोमती, दिस इज माई घाघरा, this is my Gandak, this is my Kosi, this is Son, this is Betwa, this is Chambal and Banas। तो चंबल और बेतवा तो ट्रिब्यूटरीज हो गई यमुना की, और सोन जो है वो बिगेस्ट पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली है जो वेस्ट बंगाल में ड्रेन करती है। अभी थोड़ी देर पहले आपको महानंदा रिवर बताया, वो ये वाली रिवर है जो बहुत छोटी रिवर है, इस स्केल में इसको फिट इन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो घाघरा और गंडक को देखेंगे, इंटरनेशनल फ्लो की स्ट्रीम्स हैं,
When I talk about Ganga, Yamuna, they are rising from Uttarakhand. And I have to just open up this map to make you understand something very important. उसके बाद फिर दोबारा से इस मैप पर आते हैं. आगे ये मैप पर ध्यान से देखते जाओ. अलकनंदा, पिंडार, अभी हम थोड़ा सा डिमार्केट कर रहे हैं. ये देवप्रयाग जो है ना, यहाँ पर आपको मिल जाएगी भागीरथी. भागीरथी यहाँ मार्क नहीं है, हम मार्क कर दे रहे हैं. अभी दिखा रहे हैं आपको भागीरथी, अलकनंदा. ये है ना जोशीमठ. जोशीमठ सिंकिंग, जोशीमठ सिंकिंग बहुत ज्यादा आपके न्यूज़पेपर में है, तो बहुत ध्यान से नोटिस कर लो. इन उत्तराखंड ऑफ आर कंट्री, confluence point of Dholi Ganga with Alaknanda is giving you Joshimath. जोशीमठ जो है उसका सारा का सारा fragile ecological setup is correlated with the problem of unsustaining planning. I just come back to this map. पहले जरा ये वाला डायग्राम को देखो. I think this will give you the clarity. ये मेरी रिवर है जिसको हमें फोकस करना है डोमिनेंटली. ये गई मेरी अलकनंदा. हमने इसको ब्लैक कलर से मार्क कर दिया. रिवर अलकनंदा. अच्छा, अब हम रेड कलर से मार्क कर रहे हैं भागीरथी. आपको पिछले मैप पे दिखा दिया. कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा भागीरथी इज कॉल्ड देवप्रयाग. इसको नंबर 1 दे दो. देवप्रयाग के बाद शुरू हो जाती है रिवर गंगा. सो रिवर गंगा का बिगिनिंग जो है वो देवप्रयाग से है. भागीरथी की शुरुआत गंगोत्री से है और अलकनंदा की शुरुआत जहां पर बद्रीनाथ है वहां पर आप कब बात करते हो the river Alaknanda river marking up its rising from Milam glacier. अच्छा, अब हम यूज कर रहे हैं बिल्कुल अलग कलर और ध्यान से नोटिस करते जाएंगे हम सब लोग. जब धौली गंगा कन्फ्लुएंस करती है अलकनंदा से, आप इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग. जब नंदाकनी मर्ज करती है अलकनंदा से, आप इसको बोलते हो नंद प्रयाग. जब पिंडार ग्लेशियर से राइज करती है, ये जब पिंडार रिवर आकर मर्ज करती है अलकनंदा से, तब आप इसको बोलते हो कर्ण प्रयाग. और जब मंदाकिनी, अब ये एकदम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, थोड़ी सी अलग हो गई. केदारनाथ इज लोकेटेड ऑन इट्स बैंक. तब ये हुआ रुद्र प्रयाग, तो नंबर 5 हो गया. तो जब हम कहते हैं ना पंच प्रयाग का लोकेशनल जस्टिफिकेशन सिर्फ ये है कि 4 प्रयाग जो हैं वो अलकनंदा के साथ ही एसोसिएटेड हैं. खाली देव प्रयाग को आप भागीरथी के साथ एसोसिएट करते हैं. और क्योंकि यहाँ पर यमुनोत्री दिया हुआ है, इसलिए हम एक जस्टिफिकेशन तो जरूर बनाएंगे. गंगा को ऐसे डिसेंड करके इधर मूव आउट कर दो, स्केल पर नहीं ले रहे हैं, सो डोंट बी वरीड अबाउट इट. और ये मर्ज कर दीजिए. ये आज की डेट में प्रयागराज, इलाहाबाद नाम हटाई दिया, प्रयागराज बना दिया. तो प्रयागराज इज कोरिलेटेड टू द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना. आपके पास सारा डोमेन ऑफ लोकेशन आ गया. बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है. जितने भी आप रिवीजन कर रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश पर फोकस बताया जा रहा है. हम कह रहे हैं आप अलकनंदा, भागीरथी, जोशीमठ के लोकेशन को ध्यान से देखो. अब जब आपने नंदाकिनी को नंद प्रयाग अलकनंदा के साथ कन्फ्लुएंस कर दिया, अब समझ में आ रहा है. ये रहा जोशीमठ, धौली गंगा, अलकनंदा, नंद प्रयाग. आई होप यू आर गेटिंग इट. कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग. लोकेशन क्लैरिटी आ गई. You have to justify the regions that are correlated with जोशीमठ and its fragile location. क्योंकि जब आप जोशीमठ की बात करते हो तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं हिमालयन बेल्ट्स को, और हिमालयन बेल्ट्स को आइडेंटिफाई करते हुए आपको ये सारे रिवर्स फॉल्ट्स के बारे में जजमेंट लेना पड़ता है. सो ट्रांस हिमालयन मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जोशीमठ की लोकेशन की फ्रेजिलिटी आपको यहीं से दिखाई दे जाएगी. ट्रांस हिमालयन मेन सेंट्रल थ्रस्ट. देवप्रयाग मतलब आप पहुंच गए कन्फ्लुएंस ऑफ
Alaknanda. 13 big river systems of our country includes Gangetic system, Brahmaputra system, Indus system and 10 peninsular system. Protected areas और उनके related expressions आपके maps में बहुत easily available हैं. उनको highlight करके demarcate करिए किस state पर, किस location पर. I think that suffices. So you should take the revision on this front. I hope I have been successful in giving you the revisions that is required to be taken strongly in the map-based questions involving both Indian and global domain. It was not feasible for us to get into the pinpointing details of every item, but I attempted to cover up all the significant location that is largely overshadowed with some of the highlighting locations overemphasized in our revision purposes. I insist that you add these information with your already studied information, and it is going to give you additional significant benefit in your upcoming prelims. Happy learning to all of you. I'll continue to extend my support, helping hand to help you achieve your dreams. All the very best. Bye-bye. I conclude the map sessions here.